Hello guys, welcome to new video. Today we are going to learn about the Hobbes algorithm. So in this particular video we learn about the Hobbes algorithm and we understand the Hobbes algorithm with some examples. According to Mumbai University, the Hobbes algorithm is very important. So Hobbes algorithm understand करने के लिए वीडियो एंड तक देखो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो. Okay, so let's start with the Hobbes algorithm. But before starting the Hobbes algorithm, I just want to let you know what should be the background of Hobbes algorithm, means why Hobbes algorithm is used in NLP. Okay, इसका requirement क्या है, ये क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों है in NLP, that we understand first. Okay, so if you know the background, then you can understand why this algorithm is used and for what purpose it is in NLP. So before starting the Hobbes algorithm, I just want to give you about the idea of the levels of NLP. We already know there are total 5 levels according to our syllabus, that is morphological analysis, syntax, semantic, pragmatic and discourse. Okay, so जो Hobbes algorithm है वो अपना pragmatic and discourse analysis के chapter में आ रहा है. That is nothing but your the 5th module. Okay, so about these three you know already. Morphological analysis क्या है, syntax analysis क्या है, semantic analysis क्या है. Okay, so you know about that. Semantic analysis is about to meaning of the sentence, not only meaning, the exact meaning. So in pragmatic and discourse analysis also we are doing the same. We are finding the exact meaning of the sentence, but those sentence are have some references. Suppose I would like to give one example. The example is the first example. If you check, the soldier fought like lion. In this particular example, what can I say? The soldier fought like lion means soldier ने अपने हाथों से या फिर दांतों से फाइटिंग नहीं की है. ओके, ही फाइट विद द गन मीन्स यहाँ पे रेफरेंस उसको लायन का दिया है, बट ही नॉट सेम एग्जैक्टली लायन जैसे फाइट करते हैं वैसे फाइट नहीं किया है उसने, बट उसको रेफरेंस दिया है लायन का. ओके, सो दैट काइंड ऑफ रेफरेंसेस विल बी we have to check with this pragmatic analysis and discourse analysis. Okay, so that's why it is called also known as the reference resolution. So वो reference उस किसके लिए दिया है, उसको क्यों दिया है, देन उस रेफरेंस का एग्जैक्ट यूज़ क्या है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, दैट वी गोइंग टू फाइंड आउट दिस इन प्रैग्मेटिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस. अभी ये तो हो गया कि उस पर्टिकुलर सोल्जर को ही लायन एज अ रेफरेंस दिया है, बट देर इज़ अ वन अनदर सेंटेंसेस ऑल्सो. मीन्स यहाँ पे तो अभी एक ही सेंटेंस है, सो एक ही सेंटेंस का रेफरेंस फाइंड आउट करना है तो वी कैन कंसिडर दैट विल बी कंसिडर एज अ pragmatic एनालिसिस. बट इफ देर आर मोर देन 2 सेंटेंस, सपोज देर इज अ सेंटेंस लाइक, then if you check with the second sentence, the second sentence is nothing but the Sachin Tendulkar is a god of cricket, he is from India. Now there are total 2 sentences in this. Sachin Tendulkar is a god of cricket is the first sentence, and and the second sentence is he is from India. Now if you see in these 2 sentences, in the second sentence he is a pronoun is used, and that particular he is referred to Sachin Tendulkar. As we know, as a human being we have a intelligence, so we can understood that he is referred to Sachin Tendulkar, but how the system will know that he is referred to Sachin Tendulkar only? Okay, so these 2 kind of sentence give refer pronoun to which noun, that should be come under in anaphora resolution, that is called as reference resolution as well as anaphora resolution. Okay, anaphora is nothing but the reference. So these 2 sentence with refer to first sentence or related with the other sentence, that is called as discourse analysis. So that's why in the starting only I mention over here, Hobbes algorithm and centering algorithm are nothing but the anaphora resolution only. जो references देने का part है, references किसको दिया है, वो पर्टिकुलर सेंटेंस किसके लिए कहा है, वो पर्टिकुलर सेंटेंस क्या रेफर कर रहा है, वो रेफरेंसेस ढूंढने के लिए ये 2 algorithm यूज होते हैं, दैट इज Hobbes algorithm and centering algorithm. I give you this pragmatic and discourse analysis, it is reference resolution or you can say anaphora resolution, and these resolution having 2 algorithm, first is Hobbes algorithm and another is centering algorithm. Now how it work, I hope you understood the
scenario of the Hobbes algorithm, why it is required, and why it is used in NLP. Okay, so now what is Hobbes algorithm, that you understand right now. Now what are the steps or what are the methods to understood the Hobbes algorithm. Now we exactly move towards the Hobbes algorithm. The Hobbes algorithm is a method for resolving pronoun. जैसे मैंने अभी बोला कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ गॉड ऑफ क्रिकेट, ही इज़ फ्रॉम इंडिया. नाउ ही जो प्रोनाउन है उसका रिजोल्यूशन करने के लिए हॉब्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं. मतलब ये ही किसके लिए यूज़ किया है, ही है, ही में है, देयर आर मेनी प्रोनाउंस आर देयर, दोज प्रोनाउंस आर किसके लिए यूज़ होता है, वो प्रोनाउंस इनका रिजोल्यूशन करने के लिए ये हॉब्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं. Then it is based on syntactic parse tree of the sentence. Now syntactic parse tree, you know that in our third module, that is syntax analysis, we done the parse tree. Now parsing the tree with help of some grammar rules, and we make a tree, okay, that you already know. Then with help of grammar rule create tree and relate words. Okay, अभी देखो पहले तो हॉब्स एल्गोरिथम मेथड क्या करता है, प्रोनाउन रिजोल्यूशन का काम करता है. देन इट इज़ बेस्ड ऑन द सिंथेटिक पार्स ट्री. वो सिंथेटिक पार्स ट्री के ऊपर बेस्ड है. और सिंथेटिक पार्स ट्री कैसे बनाते हैं, विथ हेल्प ऑफ ग्रामर रूल. सो विथ हेल्प ऑफ ग्रामर रूल वी क्रिएट ट्री एंड वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन दोज वर्ड्स विथ हेल्प ऑफ दैट सिंथेटिक ट्री ओनली. ओके, नाउ ये कैसे वर्क करता है, उसमें स्टेप्स क्या है, हम लोग वो एग्जाम्पल में देखेंगे. नाउ जस्ट यू अंडरस्टैंड कि पार्स ट्री क्या करता है, सॉरी हॉब्स एल्गोरिथम क्या करता है. हॉब्स एल्गोरिथम जो प्रोनाउन आए हैं सेंटेंस में उसका रिजोल्यूशन का काम हॉब्स ट्री करता है. देन वो रिजोल्यूशन के लिए किसका हेल्प लेता है, वो सिंथेटिक एनालिसिस का हेल्प लेता है. मतलब सिंथेटिक एनालिसिस का हेल्प लेता है, मतलब उसमें क्या करता है, वो पार्स ट्री क्रिएट करता है. देन पार्स ट्री क्रिएट करने के बाद हर एक वर्ड को वो कुछ ना कुछ तो टैग देगा. पार्स ट्री क्रिएट करना मतलब क्या, वर्ड को टैग्स देना. तो वो टैग्स देता है वर्ड्स को और देन उसका पार्स ट्री बनाता है. और उस पार्स ट्री के हिसाब से वो फाइंड आउट करते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया है. ओके, नाउ देयर इज़ वन एग्जांपल, जैक इज़ एन इंजीनियर, जिल लाइक हिम्स. देयर आर टू सेंटेंस. सेंटेंस वन इज़ जैक इज़ एन इंजीनियर एंड सेंटेंस टू इज़ जिल लाइक्स हिम. नाउ लेट्स क्रिएट अ पार्स ट्री. अब इन दो सेंटेंस का हम लोग पार्स ट्री क्रिएट करते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ द पार्स ट्री ऑफ दोज सेंटेंसेस. क्या था सेंटेंस, जैक इज़ एन इंजीनियर एंड सेकंड सेंटेंस था जिल लाइक्स हिम. सो मैंने पार्स ट्री क्रिएट करते समय एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट किया है. देन सेंटेंस को दो ट्रीज में डिवाइड किया है. लेफ्ट साइड में सेंटेंस वन कर दिया है, राइट साइड में सेंटेंस टू कर दिया है. ओके, देन जैक था, इसके लिए इसको नाउन दिया. देन वर्ब को देन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक वर्ब और एक नाउन अगेन. देन वर्ब इज, एनपी को अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डिटरमिनेंट एंड नाउन. ओके, सो एन इंजीनियर. ओके, सो सेम वे यू क्रिएट दिस जिल लाइक्स हिम. सेंटेंस टू को भी मैंने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, नाउन एंड वर्ब. देन नाउन जिल में डाला, वर्ब लाइक्स में डाला. देन वापस वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, वर्ब एंड नाउन. देन एनपी को वापस प्रोनाउन एंड हिम. ओके, सो अभी ये ट्री तो मैंने क्रिएट कर लिया. अभी एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है वो देखो. सो एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या है. सो देयर आर स्टेप्स रिटन ओवर हियर. सो फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री एंड आइडेंटिफाइंग प्रोनाउन. मैंने पार्स ट्री तो कंस्ट्रक्ट किया है. इफ़ यू सीन, दिस इज़ द पार्स ट्री ऑफ बोथ द सेंटेंस. अभी यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, प्रोनाउन. अभी प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, दिस हिम इज़ द प्रोनाउन. अभी मुझे उस पर्टिकुलर प्रोनाउन किसके लिए रेफ़र किया है वो मुझे देखना है. अभी इफ़ यू चेक द सेंटेंस, जैक इज़ एन इंजीनियर एंड सेकंड सेंटेंस क्या है, जिल लाइक्स हिम. यहाँ पे दो नाउन है, जिल एंड जैक. अभी ये पर्टिकुलर प्रोनाउन किसके लिए रेफ़र किया है, हाउ द सिस्टम विल अंडरस्टूड, कि ये सिस्टम कैसे अंडरस्टैंड करेगी कि ये हिम जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ किया है, जिल के लिए यूज़ किया है कि जैक के लिए. एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर हिम इज़ यूज फॉर जैक ओनली. बट हाउ द पर्टिकुलर सिस्टम कैन अंडरस्टैंड कि ये हिम जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ किया. सो एल्गोरिथम क्या बोलता है,
कि फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द पास्ट ट्री, आइडेंटिफाई प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन तो आइडेंटिफाई किया है। ओके, देन मूव अप ट्री टू द फर्स्ट NP और S। NP मीन्स ये एंड S मीन्स स्टेटमेंट। ओके, तो जहाँ से आपका प्रोनाउन मिल रहा है वहाँ से अप जाओ, मतलब मूव अप साइड जाओ एंड देन फाइंड आउट कि NP कहाँ पे है। अगर NP नहीं है तो S कहाँ पे है, उस दोनों में से कोई तो एक मिलना चाहिए। ओके, और उनको कुछ तो नाम दे दो। सपोज़ NP यहाँ पे मिला, अभी यहाँ पे देखो हिम यहाँ पे है प्रोनाउन और मैं अब जा रहा हूँ, यहाँ पे PRP है, मतलब NP भी नहीं है और स्टार्ट ऑफ स्टेटमेंट भी नहीं है। मैं वापस ऊपर आया, हाँ यहाँ पे NP है, सो मैंने इसको कुछ तो नाम दिया X, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पाथ को मैंने नाम दिया सपोज़ P, ये वाला NP टू हिम। तो इट इज़ फॉर योर रेफरेंस, आपको नाम देना है नहीं देना है, इट इज़ depend on you, but suppose I will give the NP as a X and PRP and that NP to him the path as P. now ये सेकेंड स्टेप भी हो गया मेरा। फर्स्ट हो गया फाइंड आउट प्रोनाउन, देन मूव अप एंड देन गिव सम रेफरेंस नेम टू देम, मैंने नेम भी दे दिए। देन थर्ड स्टेप मेरा क्या बोल रहा है, चेक टू लेफ्ट नोड टू दैट NP और S, मतलब इसका जो लेफ्ट नोड है वो चेक करो। एनी न्यू NP इज़ देयर, अगर कोई NP है क्या, नहीं है, इसके लेफ़्ट नोड में तो V है, इसको तो पहला लेफ़्ट नोड है ही नहीं। देन ओके, सो ये मेरा नहीं हो रहा है। अगर है इफ़ S देन कंसिडर दैट विल बी अ रेफरेंस फॉर प्रोनाउन, अगर है तो वो उस पर्टिकुलर NP के लिए ये रेफरेंस रहेगा, ऐसा वो बोल रहा है। बट ऑन दिस पर्टिकुलर लेफ़्ट साइड में कुछ NP भी नहीं है और स्टार्ट ऑफ स्टेटमेंट भी नहीं है। सो हमें क्या करना है, इफ़ नो देन रिपीट प्रोसेस अंटिल गेट NP मिलने तक या फिर और S मिलने तक मुझे ये प्रोसेस रिपीट करना है। ओके, सो मुझे अभी यहाँ पे तो NP मिला, लेकिन NP के लेफ़्ट साइड में या फिर डाउन साइड में मुझे NP और S नहीं मिल रहा है। सो मुझे वापस ऊपर जाना है। सो मैं इसको अभी कट करता हूँ, मैं वापस अप साइड जाता हूँ। यहाँ पे VP है, सो VP तो कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे अभी S है। तो हम लोग यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 1 नंबर देता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर दिया, सो यहाँ पे मुझे S मिला, तो अभी मुझे यहाँ पे रुकना है। सो मुझे S के लेफ़्ट साइड में चेक करना है। आपको आ रहा है ना समझ में, चेक टू द लेफ़्ट नोड टू NP और S। मैं यहाँ तक आ गया, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अभी मुझे जहाँ पे NP और S दिखेगा उसके लेफ़्ट साइड में मुझे चेक करना है कि वापस NP मिल रहा है क्या नहीं। अगर NP मिल रहा है तो मुझे रुकना है और वो NP जो दिया है वो कंसिडर करना है कि उस प्रोनाउन के लिए यूज़ किया है। बट अगर NP नहीं है तो मुझे और ऊपर जाना है। सो लाइक दिस वे मैं यहाँ से अभी यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे एक NP है मेरे पास और एक NP क्या बोल रहा है, जिल है। मतलब मेरा एल्गोरिदम क्या बोल रहा है अभी कि ये जो हिम है वो जिल के लिए है। बट यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में कुछ तो लिखा है। सो रेफरेंस नाउन टू, ब्रैकेट में क्या लिखा है, ग्रामर रूल हैव टू बी अ सेटिस्फाई, दैट्स वाई सिंथेटिकल पास्ट ट्री इज़ यूज। सिंथेटिकल पास्ट ट्री क्या यूज़ करता है, ग्रामर रूल यूज़ करता है। सो ग्रामर रूल के हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो हिम सेम सेंटेंस में कभी नहीं आएगा। हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ये जो वर्ड्स हैं वही सिर्फ सेम सेंटेंस में आएंगे। सो ये ग्रामर का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर जिल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ नाउन फॉर दिस पर्टिकुलर हिम, और वो वापस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखेगा S, तो यहाँ पे उसके लेफ़्ट में जाएगा, उसके लेफ़्ट में वापस उसको S मिल रहा है, बढ़िया। तो वो वापस यहाँ पे आएगा एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम में वो इस जगह पे आके वो उसके लेफ़्ट नोड में चेक करेगा। तो यहाँ पे मुझे NP दिख रहा है, ओके। NP के इधर आऊँगा, जैक दिख रहा है, ओके। सो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे कि NP है और उसके NP में जो नाउन आ रहा है वो कंसिडर करने का एज अ हिम। सो यहाँ पे वो हिम किसके लिए कंसिडर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैक के लिए, ओके। सो द
लास्ट आंसर आएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर हॉब्स एल्गोरिदम हिम रेफर्स टू जैक इज द फाइनल आंसर. सो अंडरस्टूड कि हिम के ऊपर जाएंगे, NP और S चेक करेंगे. इफ़ इट इज़ NP इज़ देयर देन वो डायरेक्टली उसका नाउन हो जाएगा, रेफ़र हो जाएगा. बट यहाँ पे सेम सेंटेंस के लिए आया, इसलिए हिमसेल्फ, माई सेल्फ अगर ये वर्ड रहते तो ही अकॉर्डिंग टू उसके लिए जी ला जाता. लेकिन यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं है, सिर्फ हिम है. सो वो वापस ऊपर गया और वापस उसने NP के लिए चेक किया और देन इट विल बी कम टू जैक. अगर ये समझ में नहीं आया रहेगा तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली. दिस इज़ अनदर एग्जांपल फॉर हॉब्स ट्री एंड दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल सो यू कैन अंडरस्टूड. अगर वो एग्जांपल थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ रहेगा तो इस एग्जांपल में आप अंडरस्टूड कर सकते हो. सो सचिन प्ले क्रिकेट, ये फर्स्ट सेंटेंस है. सेकंड सेंटेंस है ही इज़ अ बैट्समैन. ओके, सो सेम वे to create a past tree sentence, there are two sentences, S1 and S2. So S1 is again noun Sachin, then verb. PP को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वर्ब एंड नाउन इज, एंड क्रिकेट को वापस मैंने नाउन दे दिया. एंड सेम NP PP, PRP में मैंने ही डाला, मतलब प्रोनाउन में मैंने ही. देन BP वर्ब में इज, NP को वापस डिवाइड किया, डिटर्मिनेंट एंड नाउन में उसमें ए डाला और यहाँ पे बैट्समैन डाला. ओके, सो लाइक दिस यू क्रिएट अ पास्ट ट्री. नाउ मेरा हॉब्स एल्गोरिथम क्या बोल रहा है कि स्टार्ट विद दी प्रोनाउन. अभी प्रोनाउन कहाँ पे है, यहाँ पे. अभी ये ही रेफर्स किसके लिए कर रहा है, वो हमें सर्च आउट करना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में. ये ही किसके लिए रेफर कर रहा है. ओके, पे ही है. सो एल्गोरिथम क्या बोलता है कि start with the pronoun, go upside and search for what, NP और S. okay, so NP है क्या यहाँ पे, yes there is a NP. so यहाँ पे मुझे सर्च करना है इसके लेफ्ट में क्या है, क्या, no there is a nothing left. so वो अप जाएगा. अगर लेफ्ट में रहता तो डायरेक्टली उसको वो ही को कंसिडर कर देता कि ये उसका नाउन. ओके, बट देर इज़ अ नथिंग. सो यहाँ पे आएगा S2. ओके, सो S, उसके बाद और ऊपर जाएगा वो S. देन S के लेफ्ट में जाएगा तो उसको आएगा S1. ठीक है, सो S1 के लेफ्ट में वापस आ रहा है यहाँ पे NP, and NP is equal to Sachin. So he is refers to Sachin. Understood? मतलब simple algorithm है. We have to move upward with help of pronoun, then find for NP and S. If it is there, then okay. If it is not, then move upward left side and find out the NP. If it is NP is got it, then that particular NP will be a pronoun for that particular sentence. okay, I hope you understand this Hopps algorithm. Hopps algorithm is very easy and it come for your university exam for 10 marks. okay, so guys, ये था Hopps algorithm. I hope आपको understand हुआ रहेगा सब. अगर सेंटरिंग algorithm या फिर एप्लीकेशंस ऑफ NLP पे कुछ वीडियोस चाहिए रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करो. और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताओ. और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.